الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو شہاب بھائی کا وہ واقعہ سنانے والے ہیں کہ جسے سن کر یقیناً آپ بھی کہہ اٹھیں گے شہاب بھائی جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں اپنی نقش چھوڑ گئے ہیں۔ شہاب بھائی پچھلے ایک مہینے سے راجستھان میں تھے۔ یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہ زیادہ نہیں چل پاتے تھے اور اب وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے اپنی منزل مقصود پر پہنچیں۔ وہ راجستھان کے آخر میں آ گئے تھے۔ راجستھان میں ریتیلا علاقہ ہے جہاں دن میں ریت گرم ہونے کی وجہ سے شدید گرمی پڑتی ہے، جبکہ رات کو ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور گرمی کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے راجستھان میں جب سے شہاب بھائی تھے وہ رات کو سفر کرتے اور دن میں آرام کر لیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک گاؤں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ گاؤں خالی پڑا ہے۔ گاؤں کے بعد آگے دور دور تک ریتیلا علاقہ تھا اور جہاں یہ ریتیلا علاقہ ختم ہوتا ہے وہاں سے پنجاب شروع ہو جاتا ہے۔ شہاب بھائی پنجاب پہنچنے ہی والے تھے، بس انہیں پوری ایک اور رات سفر طے کرنا تھا۔ وہ جب اس گاؤں میں پہنچے تو انہیں حیرانی ہوئی، وہ گاؤں خالی پڑا تھا، وہاں گھر ویران تھے، دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ شہاب بھائی کو بہت عجیب لگا۔ انہوں نے پہلے بہت سارے گاؤں کے لوگوں کو دیکھا تھا، وہ جہاں بھی پہنچے لوگوں نے عزت دی تھی، لیکن یہاں کوئی ان کے استقبال کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ شہاب بھائی کو شدید پیاس لگی تھی اور گرمی بھی بہت لگ رہی تھی۔ شہاب بھائی کے ساتھ موجود پولیس والے بھی کافی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ حالانکہ وہ پولیس والے تھے لیکن شہاب بھائی کے ساتھی یہ دیکھ کر کافی حیران تھے کہ شہاب بھائی چلتے ہی جا رہے تھے، رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شہاب بھائی نے یہاں دیکھا کہ گھر تو سب کے کھلے تھے لیکن خالی تھے، ویسے کسی کے گھر میں نہیں گھس سکتے تھے۔ تیز دھوپ پڑ رہی تھی، پسینے اور گرمی سے شہاب بھائی کا برا حال ہو چکا تھا۔ پھر انہیں ایک درخت نظر آیا، وہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ درخت بھی زیادہ ہرا بھرا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ شہاب بھائی کو دھوپ سے بچا رہا تھا۔ ہوا کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ شہاب بھائی کے لیے اب تک سب سے مشکل راجستھان سے گزرنا تھا، اس لیے وہ سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جائیں اور پنجاب میں داخل ہو جائیں۔ وہ کچھ دیر درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ تھکن اتنی تھی کہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی، انہیں خود بھی پتہ نہیں چلا۔ جب اٹھے تو دھوپ کی شدت کم ہو چکی تھی، شام ہونے والی تھی، پیاس ان کے حلق میں کانٹے اگائے ہوئے تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ وہ پھر انہیں ایک کنواں نظر آیا۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھی سے ایک خالی بوتل لی جس میں پانی نہیں تھا۔ شہاب بھائی جلدی سے کنویں کی جانب بڑھے، وہاں اس بوتل میں پانی بھرا اور پیا اور وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی۔ ان سے نماز بھی مشکل سے پڑھی گئی، ان کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ شہاب بھائی نے چلنے کی کوشش کی لیکن ان سے چلا نہ گیا، ان کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی اور ٹانگوں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کافی کمزور ہو چکے تھے۔ وہ پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک گھر میں پایا تھا۔ وہ ایک چارپائی پر لیٹے تھے اور ان کے پاس ان کے ساتھی اور ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ شہاب بھائی کو اٹھتا دیکھ کر انہوں نے کہا کہ لیٹے رہو، بخار ابھی اترا نہیں ہے۔ شہاب بھائی فوراً لیٹ گئے، انہیں بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ شاید اتنے دنوں کی تھکاوٹ تھی اور پھر راجستھان کے مشکل سفر نے انہیں بیمار کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئے تھے کیونکہ یہ گاؤں تو خالی تھا اور یہاں کھانے پینے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ شہاب بھائی کھانے پینے کا کوئی سامان اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی دعوتیں کرتے تھے، ان کے لیے ہر چیز آگے لا کر رکھ دیتے تھے۔ لیکن یہاں پر شہاب بھائی کے ساتھ بہت عجیب کام ہوا تھا۔ پورا گاؤں خالی تھا۔ شہاب بھائی کو کچھ دیر بعد اپنے اندر ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو بزرگ ان کے پاس بیٹھے پانی کی پٹیاں کر رہے تھے۔ شہاب بھائی کو ہوش میں آتے دیکھ کر بولے کہ تمہیں بہت بری گرمی لگی تھی اس لیے تم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بخار بہت تیز تھا جو پہلے سے کم ہو گیا ہے، کمزوری بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، پھر کھانا کھا کر دوا لوگے تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شہاب بھائی خاموشی سے اس بزرگ کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ واقعی انہیں کھانے کی اشد ضرورت تھی اور آرام کی بھی۔
वो बुजुर्ग बाहर गए और फिर कुछ ही देर में वापस उधर ही बैठ गए। उन्होंने शिहाब भाई से उनका नाम पूछा और ये भी पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। शिहाब भाई और उनके साथी बहुत हैरान हुए क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि ये आदमी उन्हें नहीं जानता। शिहाब भाई ने जवाब दिया कि मैं मुसाफिर हूं और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बुजुर्ग उठे, दरवाजा खोला। शिहाब भाई को हूरों की भनक सुनाई दी थी। यकीनन वो उस बुजुर्ग की बीवी या बेटी थी और ये लोग पर्दा करते थे, तभी वो अंदर नहीं आई थी। वो बुजुर्ग खाने की ट्रे पकड़कर शिहाब भाई के पास आया और कहा, अच्छे से खाओ। खाना देखकर शिहाब भाई की भूख जाग उठी। उन्होंने अच्छे से खाना खाया और फिर दवा ली। कुछ ही देर में उनका बुखार उतर गया, जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था। फिर उठकर नमाज पढ़ी। बुजुर्ग ये देखकर बहुत खुश हुआ कि इतना जवान लड़का, अल्लाह से इतनी मोहब्बत, इसने बीमारी में भी नमाज नहीं छोड़ी। नमाज के बाद शिहाब भाई ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और इजाजत मांगी। इसी पर बुजुर्ग ने कहा कि आज तुम सफर ना करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आज तुम मेरे मेहमान हो, कल से अपना सफर जारी रखना। शिहाब भाई ने थोड़ी देर सोचा, अपने साथियों से मुशावरत कर फिर उनकी बात मान ली और वाकई वो ज्यादा न चल पाते और उनकी तबीयत खराब हो जाती। वैसे भी उन्होंने जो कैलकुलेशन की हुई थी उस सफर के हवाले से, वो उससे आगे ही चल रहे थे, तो आराम करने में कोई मसला नहीं था। वो अपनी मंजिल पर जो उनकी प्लानिंग थी उसी के मुताबिक पहुंचने वाले थे। रात को वो सो गए और अगली सुबह उठे, फिर से बुखार था। सारा दिन उन्होंने आराम किया। रात को वो फिर से सो गए। सुबह वो बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। इसी दौरान उन्होंने बहुत बार चूड़ियों की खनक सुनी। वो जो कोई भी थी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। शिहाब भाई बुजुर्ग से पूछने लगे, क्या आप इस गांव में अकेले रहते हैं और बाकी गांव वाले कहां गए? ये बात सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर दर्द के साए से लहराए आए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लंबी कहानी है भाई, जरूर सुनाऊंगा। और हाँ, इस गांव में मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं। इक्का दुक्का लोग अपने काम की गर्ज से आते हैं और रात होने से पहले पहले चले जाते हैं। रात के वक्त यहाँ कोई नहीं ठहरता, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा कि रात के वक्त सफर ना करना। रात के वक्त यहां सफर करना खतरे से खाली नहीं था। शिहाब भाई को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्हें इतना पता चल गया था कि वो चूड़ियों वाली लड़की उनकी बेटी है, इसलिए वो इतना पर्दा करती थी। दिन में गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए शिहाब भाई नमाज असर के बाद अपना सफर शुरू करने वाले थे। उन्होंने बुजुर्ग से एक बोतल मंगवाई। उस बोतल पर कुरानी आयात पढ़कर फूंक मारी और सफर में उस पानी को अपने साथ ले लिया ताकि उनके काम आ सके, क्योंकि रात हो चुकी थी। चूंकि कुछ ही घंटों में मौसम काफी ठंडा हो चुका था। उन्होंने बुजुर्ग से इजाजत ली। उनका शुक्रिया अदा करके घर से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही ठंडी हवाओं ने उनका इस्तकबाल किया। शिहाब भाई को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहे थे। चुनांचे उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और सफर जारी कर दिया। अभी वो गांव में ही थे कि अचानक एक साइकिल वाला तेजी से साइकिल चलाते हुए वहां से भाग रहा था। शिहाब भाई को देखते ही वो रुका और हैरत से शिहाब भाई को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उस पर शिहाब भाई ने बताया कि मैं मुसाफिर हूं। इस पर उस आदमी ने सर से पांव तक शिहाब भाई को देखा और कहा, मेरी बात मानो, आप रात के वक्त आगे सफर मत करें, कहीं रुक जाएं या फिर वापस लौट जाएं। आगे जाना खतरनाक हो सकता है। वो आदमी बड़े पुरस्कार अंदाज में कह रहा था। उसके चेहरे पर खौफ भी था और वो मुड़कर इधर उधर भी देख रहा था। उसकी बात सुनकर शिहाब भाई ने पूछा, कैसा खतरा? लेकिन वो आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ भाग गया। शिहाब भाई ने सर झटका और अपने सफर पर रवाना हो गए। अब रात हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था, हवा काफी ठंडी हो चुकी थी, सहरा की रेत भी ठंडी पड़ी थी। ये गांव शिहाब भाई की तवक्को से ज्यादा बड़ा था, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके खाली घर शिहाब भाई को परेशान कर रहे थे और उनके साथी भी डरे हुए थे। फिर अचानक शिहाब को अपने पीछे से चूड़ियों वाली आवाज सुनाई दी। शिहाब भाई और उनके साथी थोड़े से डर गए, जैसे किसी ने ढेर सारी चूड़ियां पहनी हुई हो। चलने से हाथ हिलने के बाइस वो बजने लगी हो। एक पल को शिहाब भाई को दिल डर गया कि रात के इस वीराने में चूड़ियों की आवाज, वो भी पीछे से आना, बहुत अजीब था। शिहाब भाई जैसे ही रुके वो आवाज भी रुक गई और फिर जैसे ही चलने लगे तो वो आवाज भी चलने लगी। शिहाब भाई आंखें बंद किए और आयतुल कुर्सी का वर्द किया।
चारों कुल पढ़े और फिर पलट कर देखा। वो लड़खड़ा कर पीछे हटे। सामने एक सफेद लिबास में खुले बालों वाली लड़की खड़ी थी। शिहाब भाई ने खुद के खौफ पर काबू किया और गौर से लड़की को देखा। उसने हाथों में कांच की ढेरों चूड़ियां पहन रखी थी। उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। शिहाब भाई संजीदा लहजे में कहने लगे, मैं जानता हूं तुम इस बुजुर्ग की बेटी और तुम कोई चुड़ैल नहीं हो, और तुम ये सब क्यों कर रही हो ये मैं नहीं जानता। शिहाब भाई की बात सुनकर उस लड़की के वजूद में हरकत आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे से बाल पीछे किए और फिर वहीं बैठकर रोने लगी। शिहाब भाई रुक गए और फिर पूछा कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी वजह से पूरा गांव खाली है, वीरान पड़ा हुआ है। लोग तुम्हें चुड़ैल समझते हैं, तुमसे डरते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं और मेरा बाप शुरू से इस गांव में रहते हैं। गांव का वडेरा मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब्बा ने इनकार कर दिया और मेरी शादी एक नेक इंसान से कर दी। उस वडेरे को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने मुझे और मेरे शोहर को चुपके से कत्ल करवा दिया। मेरा शोहर तो दम तोड़ गया, जबकि मैं बच गई थी। गांव वालों ने किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैंने अपने जिंदा होने को सबसे छुपाया और फिर एक चुड़ैल बनकर उस वडेरे की जिंदगी अजाब बना दी। एक रात में उसे इतना डराया कि उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गया। ये देखकर सब गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। अभी भी मैं गांव में घूमती हूं ताकि कोई भी यहां ना आए। जब यहां रहने वाले किसी की मदद नहीं कर सकते तो उन्हें यहां रहने का हक भी नहीं है। वो रोती रही। शिहाब भाई ने पूरी बात सुनी और फिर उसे कहा कि तुमने अपना बदला ले लिया, इतना बहुत है। गांव वाले भी तुम्हारी तरह बेकसूर थे, बल्कि तुमने उन जालिम वडेरों से गांव वालों को निजात दिलवाई। गरीब लोग जाने कहां रह गए होंगे इस डर से कि उनके गांव में कोई चुड़ैल है और अल्लाह को नहीं पसंद कोई उसके मासूम और मजलूम बंदों को इतना तंग करे। अगर अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी खींची तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। इस पर लड़की रो पड़ी और कहा कि मैं भटक गई थी, मैंने आपके बारे में सुना था, इसलिए आपके पीछे आई थी ताकि आप हमारी मदद कर सके। मैं अभी जाकर गांव वालों को सच्चाई बताऊंगी और उन्हें वापस ले आऊंगी। शिहाब भाई उसकी बात सुनकर होले से मुस्कुरा दिए और उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। वो लड़की उठी और जाने लगी। फिर उसने रुककर पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस बुजुर्ग की बेटी हूं? शिहाब भाई ने जवाब दिया कि राजस्थानी औरतें प्लास्टिक और लकड़ी के कड़े और चूड़ियां पहनती हैं जो छन छन नहीं करते, जबकि तुमने कांच वाली चूड़ियां पहनी हैं जिनकी आवाज आती है, और ये आवाज मैंने तुम्हारे घर में बहुत बार सुनी थी, इसलिए पहचान ली। इस पर लड़की ने सर झुका लिया और चली गई। उस शिहाब भाई की नेक दिली और अच्छाई के साथ साथ उनकी जहानत की भी कायल हो चुकी थी। उसके जाने के बाद शिहाब भाई ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर रवाना हो गए। शिहाब भाई उस वक्त पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब के लोग शिहाब भाई का बहुत ही खुश दिली से इस्तकबाल कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक शिहाब भाई के इस पाक सफर को खैर और सलामती के साथ पूरा फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हम शिहाब भाई की टीम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जैसे ही हमें कोई नई अपडेट मिलती है हम आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।